one and all present here. It gives us immense pleasure to extend our wholehearted welcome to the respected NACPIA team to grace the occasion of the cultural program. We welcome the chairperson, Dr. Krishna Kumar Mishra, Pro Vice Chancellor of Chitkara University, Punjab. Dr. Pushpam Narayan, Professor of Lalit Narayan Mithila University, Bihar. And Dr. Gervasio SFL Mendes, Principal of Government College of Arts, Science and Commerce, Goa. We also welcome our President of the governing body, Dr. Sudipta Roy, our Principal Ma'am, Dr. Shoma Roy, all our teachers and the sirs and madams of non-teaching faculty. We, the students, are extremely grateful for your presence. It is a matter of great delight that our institution has a wonderful ambience where academic activities go hand in hand with the extracurricular activities throughout the year. Enthusiastic performances of the students in the cultural program, besides pursuing studies, gives a solid foundation in which education and culture thrive simultaneously. We are thankful for our college for promoting culture, catering to the needs for all-round development of the students. After the first day visit, I know you all have been waiting for the approach of the evening, which is sure to promise everyone present here some happiness. Hence, we also welcome this beautiful evening when we can showcase our talents on behalf of the institution. We have organized a short cultural program. We shall be grateful if our efforts and endeavors prove to be successful, so much so that we win your appreciation. Our program begins with Saraswati Vandana, paying our devotion to the goddess Saraswati as a mark of inauguration of the program. आज की शुभ संध्या में आदरणीय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद का हार्दिक स्वागत करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। साथ ही हम स्वागत करते हैं चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा महोदय, चितकरा विश्वविद्यालय पंजाब के उप कुलपति, मिथिला नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार की अध्यापिका डॉक्टर पुष्पम नारायण महोदया जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सेकुलम गोवा के अध्यक्ष डॉक्टर जर्वसियो एसएफएल मेंडेस महोदय जी, हम सब आपकी उपस्थिति से कृतज्ञ हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे महाविद्यालय की परिचालक समिति के सभापति आदरणीय डॉक्टर सुदीप्त रॉय महोदय और परिचालन समिति के सभी आदरणीय सदस्य, महाविद्यालय की अध्यक्ष डॉक्टर सोमा रॉय महोदया जी, हमारे सम्माननीय अध्यापक अध्यापिकाएं और गैर शिक्षक कर्मचारी वर्ग तथा सारे सहपाठिनियों का। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रतिष्ठान में यह वातावरण है जहां पढ़ाई के साथ साथ पाठ्येतर विषयों पर भी ध्यान दिया जाता है, जिनमें से एक है सांस्कृतिक वातावरण। यहाँ छात्राओं की पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति की गहरी नींव बनाई जाती है। हम हमारे महाविद्यालय को आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि यहाँ पढ़कर हमारा सर्वांगीण विकास संभव हुआ है, जो आज के वातावरण के लिए अनिवार्य है। इससे हम में एकता की भावना स्थापित होती है। मूल्यांकन के प्रथम दिवस के अंतिम क्षण में की गई एक छोटी प्रचेष्टा आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं और आशा रखते हैं कि यह प्रचेष्टा आप सभी को आनंद प्रदान कर पाए। अतः इस सुंदर संध्या का आह्वान करते हैं जिसमें हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएं। सरस्वती वंदना के माध्यम से देवी सरस्वती, जो ज्ञान, संगीत तथा कला की देवी मानी जाती है, उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए आज के प्रतिष्ठान की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।
Krishna De Mitro, Deputy Magistrate, Shirampur Sub-Division, and respected IC, Shirampur Police Station. Patriotism is a feeling of love, loyalty, and devotion towards one's own country, culture, and community. It is a vital force that binds people together, promoting a sense of belonging and responsibility. Patriotic songs are a medium to reveal our love and respect towards our country. It is a powerful tool to generate Desh Prem. Therefore, we the students have prepared to present before you a patriotic song. Let's encourage them with a huge round of applause. Durga
on with the main segment of our cultural program. It is divided into two parts. The first segment represents Bengal's folk culture. The second segment is based on women empowerment. Bengal has traditionally been the abode of folk culture in India. Unlike the other parts of the world, with its variety of components like music, dance, drama, painting, folk culture represents the hardcore feelings of the rural Bengal. Politically saying, in undivided India, East Bengal, that is present day, Bangladesh and West Bengal, which share cultural similarities, were jointly named as Bengal. So far as the term folk culture is concerned, folk means low or the people in general. The origin of folk culture is deeply embedded in the religion, festival, education, emotion, marriage, entertainment, and in the variety range of human sentiments. Although every state or religion has its folk dance forms, West Bengal and India's neighboring country Bangladesh have a couple of folk dance forms in common. Some of the most popular folk dance forms of Bengal are Kirtan dance, Lathi dance, Jari dance, Baul dance, Jhumur, Fakir dance, and so on. We now present before you Bengal's folk.
not born, but rather becomes a woman, asserts Simone de Beauvoir. From time immemorial, women have been marginalized, but we should remember that margins hold the orbit. The unheard voices and the unseen acts of women support the society from falling apart. Gone are the days of sati and polygamy, and women have indeed marched a long way. They have learned to reach out to their dreams through their endeavors. This historical journey of each woman to overcome all struggle is not an easy one. Crossing the boundaries of subjugation and asserting oneself as a woman is the first step towards woman empowerment. Today, a woman spans from the sky as a pilot to the deep ocean as a diver. On one hand, she is the one who shelters and nurtures the future generation as a mother, gives life to the sick as a doctor or nurse, ignites the lights of knowledge as a teacher, while on the other hand, fights against criminalities as a police or establishes truth as a lawyer. Being an angel in the house, she prepares a cozy and secured home for all. Apart from material achievements, there are several unacknowledged spheres where women leave a mark of her strength. The life journey of each woman for the quest of her identity is indeed a matter of pride. The mythological Devi Durga reincarnates herself through every woman in our everyday life. In addition to achieving one's goals, women should never ignore her duty towards her own self. The duty of nurturing herself as an individual who can live up to her heart's desire. Each one of us should realize and respect our own worth in every walk of life. As Swami Vivekananda asserts, that country and that nation which do not respect women have never become great nor will ever be in future.
Let us all pledge to put our best efforts and derive the best from each one of us, because we are in the process of reinventing ourselves and writing new histories. Srirampur Girls College, being exclusively a girls' college, program on women empowerment seems all the more significant when women can no longer be caged or imprisoned. Rather, will be illuminated with bright, sparkling lights of new dawn. साइमन दी बीवर के अनुसार कोई नारी बनकर जन्म नहीं लेती, बल्कि उसे नारी बनाया जाता है। जन्म लेते ही विधि नियमों से बांधकर समाज उसे नारी की संज्ञा देकर और पुरुषों को श्रेष्ठ बतलाकर उसे अलग कर दिया जाता है। लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि सीमा रेखा ही वृत्त को धारण किए हुए है। मुख स्वर और अनदेखे कार्यों से नारी समाज को गिरने से रोकती है। यह वही आदि शक्ति है जो इस जीवलोक में प्राण को धारण करती है, प्राण का पोषण करती है। जिस तरह विहंग अपने दोनों परों की सहायता से आसमान छूती है, उसी तरह एक समाज अपनी बुलंदी पर तभी पहुंच पाता है जब नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, that country and that nation which do not respect women have never become great nor will ever be in future. लंबी राह चलने के पश्चात अनेक बाधा निषेधों का उल्लंघन कर आज नारी स्वमहिमा में अवतरित हुई है। आज नारी विमान चालिका बनकर महाकाश में तो कभी समुद्र के मझधार में नाविक बनकर विचरण करती है। वह एक हाथ से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती है तो दूसरे हाथ से चिकित्सक के रूप में अपने मरीजों को जीवन दान करती है, तो कहीं शिक्षिका के रूप में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, कहीं पुलिस के रूप में जुल्म के खिलाफ लड़ती है, तो कहीं सत्य की स्थापना के लिए वकील या न्यायाधीश के रूप में समाज के सामने आती है। आज युद्ध क्षेत्र से वाणिज्य तक नारी विश्व श्रेष्ठ है। पौराणिक युग की 10 भुजा देवी दुर्गा आज नए कलेवर में हर घर में नारी के रूप में अवतरित है। इसीलिए आज हमें अपने भीतर की सर्वश्रेष्ठ शक्ति की उपलब्धि करनी है। आओ आओ आज हम करें प्रतिज्ञा, अपने सर्वोत्तम गुण और सर्वश्रेष्ठ प्रयासों द्वारा करें एक नए इतिहास की संरचना। धन्यवाद। We either make ourselves miserable or we make ourselves strong. The amount of work is the same, as quoted by Carlos Castaneda. Women play a pivotal role in the society, yet she is neglected and taken for granted in both private and public spheres. Violence and harassment is the new reality. By violence, it can be defined as verbal, physical, sexual. A lot of this is also due to a mindset which defines woman as weak and not capable enough to protect herself. Henceforth, martial art finds the spotlight as the solution. Empowering women in martial art goes beyond physical prowess. It also involves recognizing and celebrating their mental and emotional strength. It is a matter of great pride that our institution, Srirampur Girls College, has put a sustainable effort to empower students through martial art training. Therefore, with heart filled with gratitude, the students have prepared a song by Rabindranath Tagore, Shankhochero Bihobolatai Nijero Apoman, which means to be afraid of oneself is to humiliate your own self. Let's welcome them on stage with a huge round of applause.
मातृभूमि, जिसे हम भारत माता कह के पुकारते हैं। माता, जिसका अर्थ है माँ, और माँ होती है नारी। तो जिस देश को हम नारी कहकर संबोधित करते हैं, आज भी उस देश में नारी को सहना पड़ता है अवहेलना, अपेक्षा, लांछन और अत्याचार। बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। फेंक दो उसे कूड़ेदान में। पूरा दिन किताब लेके बैठोगी क्या? घर का काम कौन करेगा? शादी के बाद घर का काम ही तो करना है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पौराणिक इतिहास साक्ष्य बताते हैं कि पूरे विश्व भर की समस्या से आगे ढाल बनकर खड़ी हुई है नारी। असल में माँ का आंचल ही तो हमें सारी विपदाओं से सुरक्षित रखती है ना? इसीलिए पुराण में इस महाविश्व को बचाने हेतु प्रकट होती है महामाया देवी दुर्गा। कभी संतान को कलेजे से लगाकर देश को बचाने हेतु देश के शत्रु से लड़ पड़ती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। युद्ध के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में भी सर्वत्र हमें बचाने आगे बढ़ के आती है नारियां। कभी सुरक्षा, कभी गृहस्थ, कभी स्वास्थ्य, तो कभी विचार व्यवस्था में। 19वीं सदी की 40 से 50वीं दशक, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय नारियां थी गृहबंदी। मगर उस समय भी एक भौतिक रूप से सशक्त नारी ने अनुभव किया कि इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है अशिक्षा, और ये देश तभी शिक्षित हो पाएगा जब एक माँ अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से परिपूर्ण बनाएगी। आगे आ खड़ी हुई वो नारी शिक्षा का पाठ सबको दिखाते हुए, वो है महान सावित्रीबाई फुले। इस देश को मिली सरोजिनी नायडू, इस देश को मिली कमला देवी चट्टोपाध्याय, इस देश को मिली है मेधा पाटेकर, और उसका फल प्राप्त हो रहा है आज। नारी शिक्षा की जागरूकता देश में तेजी से बढ़ रही है। आज़ादी के बाद हमने पाई महिला प्रधानमंत्री, हमने पाई महिला राष्ट्रपति। माँ का प्रेम, माँ का स्नेह से पहले केवल घर चला करते थे, अब देश और राज्य भी सुरक्षित महसूस करते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसेंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसेंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मैं मम्मी के बिना स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हारी टीचर माँ जैसी ही तो हूँ, आ जाओ मेरे पास। चलो एक साथ मिलके कागज के प्लेन उड़ाते हैं। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीद हंसेंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। क्या हुआ बेटी, कोई प्रॉब्लम?
क्या हुआ बेटी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैम। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। बच्चों की गलतियों को साफ करके सुधार का नया लकीर खींचना ही एक टीचर का कर्तव्य है। केवल 14 वर्ष की उम्र में विवाह, बाल विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्ति का योग, लेकिन उस संतान को बचाना संभव नहीं हो पाया। कारण स्वास्थ्य की समस्या। किशोर अवस्था में प्रथम मातृत्व का एहसास, फिर संतान खो देना का शोक। हर तरफ से क्षतिग्रस्त आनंदीबाई जोशी ने तय किया कि खुद बनेंगी चिकित्सक। डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश जाने की सोच एवं प्रथम भारतीय चिकित्सक जिनको मिली विदेश की डिग्री। देश में लौट के बंगाल के श्रीरामपुर कॉलेज की चिकित्सक आनंदीबाई का व्यक्तित्व आने वाली नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा। इसी प्रेरणा की स्रोत से प्रेरित होकर देश भर की कई नारियों ने अपने मन में भी सपना देखा, सपना एक सफल चिकित्सक बनने का। देश को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुनियोजित करने के लिए आनंदीबाई के द्वारा शुरू किए गए पहल ने इस देश को इतने डॉक्टरनी से परिचित करवाई है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इंदिरा हिंदुजा, मंजुला आनागनी के जैसी चिकित्सक मिली इस देश को। आनंदीबाई की प्रेरणा से उठ खड़ी हो रही है ऐसी और अनेकों आनंदीबाई जो हमारे स्वास्थ्य को आनंद की मधुर वाणी से मिलाने के हर संभव प्रयास में लगी रहती है प्रतिदिन प्रतिपल। तभी तो कोविड युग में चिकित्सक से लेकर नर्स तक, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पहलू तक पल पल जिन्होंने अपने समय वार दिया मेरे आपके लिए। हेलो मम्मी, आप कब लौटोगे? आऊंगी बेटा, बाहर कोरोना को हरा के फिर आऊंगी। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। डॉक्टर चलिए, बहुत काम किए हैं, अब थोड़ा सो लेते हैं। नहीं, अगर हम सो जाएंगे तो पूरी दुनिया सो जाएगी। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा भी बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। कोरोना की महामारी के समय जब लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे, तब हम डॉक्टर्स रोज मौत से हाथ मिलाकर आते थे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो मम्मी, आप कब लौटोगे? तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश की सुरक्षा हेतु फौज में भारतीय सेना की एक चौकड़ी हमेशा इस पर नजर गड़ाए रखती है। चाहे वो आकाश पथ हो या समुद्र हो या चाहे समतल जमीन, उस चौकड़ी में महिलाओं की उपस्थिति उनके साहस का प्रतीक है जो पूरे देश को गौरवान्वित करती है। साल 2004 में प्रथम महिला के तौर पे आसीन होती है पुनीता अरोड़ा। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद को संभालती है। इसके बाद में भी एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, लेफ्टिनेंट जनरल माधवी कानितकर से लेके वर्तमान समय में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद को संभालती हुई कविता सहाय। भारतीय सेना में एक से एक सक्षम नारी उपस्थित है, लेकिन महिलाएं सिर्फ सीमा की सुरक्षा में ही नहीं बल्कि देश की संप्रभुता की रक्षा करती सीमा के भीतर किरण बेदी जी ने भी इतिहास रचा है। 1972 के दौड़ में महिला आईपीएस बनना उस किरण की छाता से आलोकित हो आज हमारी कितनी सशक्त महिलाएं जिला, राज्य एवं अलग अलग स्तर पे कार्यरत हो देश को संभाल रही है। आज से अब से जान मेरी मैं को ना छूने दूंगी, जान को चाहे छन्नी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से जान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छन्नी कर दो मान को ना छूने दूंगी।
सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम दिल में अपने भर लोगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 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 नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश हो या राष्ट्रनीति, रणभूमि हो या शस्त्र भूमि, युग युग में हमारी माओ की तरह सब कुछ संभाल रखा है नारियों ने। लेकिन एक मकान तभी घर बन पाता है जब वहाँ एक नारी का स्पर्श पड़ता है। जन्म से मृत्यु तक हमारा जीवन नारी शक्ति के आसपास घूमता रहता है। कहा जाता है कि दुनिया के सारे पेशे के लोगों की छुट्टी होती है, मगर गृहिणी की कोई छुट्टी नहीं होती। अतः गृहिणी ना कहकर गृहकर्ता कहना ही बेहतर होगा। चाहे जितना भी हम पौरुष पे ध्यान क्यों न दें, नारी शक्ति के बिना पौरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। काजी नजरुल इस्लाम ने तो काफी पहले कहा था, विश्व में जितनी भी महान रचनाएं हैं जो विश्व कल्याणी है, उनकी रचना का आधा श्रेय है नारी और आधे में है नर। इस विश्व में जितने भी फूल खिले हैं, जितने फल जन्मे हैं, उन सभी को रूप, रंग, रस, सुगंध एवं सौंदर्य देने वाली नारी ही है। यदि नारी का मातृत्व, स्नेह, प्रेम करना ना होती तो ये विश्व एक कठिन, कठोर, असहनीय भूमि के सिवा और कुछ न होता।
मेरा फाइल नहीं मिल रहा। ये रही आपकी फाइल। थैंक यू सो मच। ये फाइल अगर नहीं मिलता तो मेरी नौकरी चली जाती। माँ जी, ये काढ़ा पी लीजिए, नहीं तो खांसी नहीं जाएगी। इस देश के विचार व्यवस्था में भी बार बार नारियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते पाया गया है। जब नारियों के अस्तित्व पे लोग सवाल उठाया करते थे, उस समय खड़े होकर कॉर्नेलिया स्वरेब उतर आई थी सड़कों पर, ब्रिटिशों को उन्हीं का कानून पढ़ाने। आज भी दुनिया भर में कानून के प्रतीक के रूप में महिला को तराजू लिए दर्शाया जाता है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि दुनिया भर की किसी भी समस्या में सुविचार प्रदान करने की क्षमता केवल एक नारी में ही है। वो क्षमता कभी 100 पुरुषों को एकत्रित करके भी उत्पन्न नहीं की जा सकती। तुम अकेली लड़की कोर्ट में जाके उन लोगों के साथ लड़ नहीं पाओगी। वो लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हो सकता है। पर मैं एक लड़की होके और एक लड़की के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। अन्याय से अ अक्षर को मिटा के न्याय देना ही मेरा काम है। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। ऑर्डर ऑर्डर। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव।
शक्ति के उत्थान के बारे में भले ही कितनी बातें कर ले हम, नारी शक्ति के नए उत्थान की कोई योजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व भर की नारियां युग युग में खुद आगे बढ़कर देश विदेश में आगे बढ़ी है। नारी ही सृष्टि है, नारी ही विनाश है, नारी ही शक्ति है। इसी नारी की, इसी माँ की हम देवी दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। यही माँ हमारे लिए महाशक्ति का स्वरूप है। ये माँ ही हमारे लिए गृहनंदिनी विश्वरूपी महामाया है। नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जिस देश में हम नारी को ही पूजते हैं, जिस देश में नारी हमें सुरक्षा देती है, जिस देश की घरों में नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्या हम
उस लक्ष्मी को सुरक्षा दे पाते हैं। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। All's well that ends well. We have finally reached the end of our cultural program. We have tried to put our best efforts forward, and our hearts are filled with overwhelming gratitude that our eminent NACPIA team has given your valuable time to watch and also gave your patient hearing to this program, which we organized on behalf of our institution. However, no program can really end without paying our respect and devotion to our country. And what better way than to pay our tribute through the national anthem? I would like to invite upon stage all NACPIA team members, the chairperson Dr. Krishna Kumar Mishra, the Pro-Vice Chancellor of Chitkara University, Punjab, Dr. Pushpam Narayan, the Professor of Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar, Dr. Gervasio SFL Mendes, the Principal of Government College of Arts, Science and Commerce, St. William, Goa, our respected Principal Madam, Dr. Shoma Roy, the President of the Governing Body, Dr. Shudipta Roy, Shudishna De Mitra, Deputy Magistrate, Shirampur Subdivision, our respected IC, Shirampur Police Station. Sirs and Madam, you are requested to come up on the stage. Let us all pledge and stand up to serve our country India with utmost love and devotion. Now the national anthem.